Good morning to all of you. You all are welcome in Abhigyan IS Academy. Now, we are going to discuss the basic concepts about the Constitution and Indian polity. We will start from the initial stage and basic concepts. What do you mean by the polity? What do you mean by the Constitution? And related aspects would be discussed today. Okay. The one thing, first of all, we should know about that. For the gaining knowledge, we should work on three buildings. There are three buildings for knowledge. The first building is that interest building. Second building is that concept building. And third building is that facts building. Are you getting my point? If we have interest in any subject, definitely we can understand. That is called the concept building. Okay. At the last stage, we have to cover the facts. Suppose that we are going to discuss about the Constitution. Directly, we should not work on facts building. Are you getting my point? How many days it has been taken to form the Constitution? How many articles have been written? We should not focus in initial stage. First of all, we should develop our interest. Are you getting? Mainly, we have to crack the CS exam, Civil Services exam. And your rank will be decided according to your marks, which will be obtained in mains and interview. Are you getting? Mains exam. That is the written nature. Your mains will demand the good concept. Are you getting my point? And for the good concept, first of all, we should work on interest. So today we are going to discuss about the two aspects, concept and concept with interest. Concept with interest. And then we will discuss about the Indian polity and related aspects today. लेक्चर हिंदी इंग्लिश दोनों में किया जाए या फिर कंप्लीट इंग्लिश में किया जाए? चलिए ठीक है, 10 मिनट आप थोड़ा सा आराम से सुनेंगे बेसिक, क्योंकि वो आप जानते हैं, वही मैं डिस्कस कर रहा हूं. कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अ काइंड ऑफ document in which rule of governance has been written. Rule of governance, how to govern the country, you will get the idea from the constitution. देश चलेगा कैसे, ये बात की जानकारी कहां मिलेगी? कॉन्स्टिट्यूशन में. बट हु विल रन द कंट्री, हु विल बी ऑपरेटर, हु विल ऑपरेट द कंट्री एंड सिस्टम, दैट विल बी द गवर्नमेंट. जैसे ये फोन है, ये फोन तो बना दिया, लेकिन ऑपरेटर कौन होगा इसका? तो इसके लिए कोई ना कोई तो चाहिए. तो देश चलाने के लिए, सिस्टम को रन करने के लिए, दैट शुड बी द गवर्नमेंट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट which kinds of the nature will be? Suppose that government is also in USA, government is also in India, but the nature of the government is different in both countries. Are you getting my point? Second point is that nature of government. Only we will mention 2 points in the constitution that will not be the real and appropriate definition of the constitution. If we discuss about the constitution and you will not mention the rights of the people, I think it will not be complete. So the rights of the people, the rights of the people. These rights
must be in guaranteed. It means nobody will take away your rights from you. Nobody will take your rights. Are you getting? Generally, government will try to take your rights. When government will be despotic का मतलब होता है तानाशाह, तानाशाह। जब सरकार तानाशाह हो जाती है तो आपके राइट्स वो गारंटी में नहीं मिल पाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Our constitution writers, they have imagined about this incident. Maybe government will be despotic. In this situation, the rights cannot be guaranteed. So why not the power should be separated among the government bodies? Are you getting my point? Then the fourth, separation of power. सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया, ठीक है, ताकि सरकार तानाशाह ना हो। अब हमने गवर्नमेंट बना दिया है, अब गवर्नमेंट के लिए कोई तो गाइडलाइन तैयार करेंगे ना, जिस पे गवर्नमेंट फंक्शन करेगी आगे के लिए। तो इसके लिए हमने ये बनाया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव, डायरेक्शन देने वाला, प्रिंसिपल, सिद्धांत, किसका? स्टेट पॉलिसी। ये जितना भी टर्मिनोलॉजी लिख रहे हैं ये सब आप पता है आपको, लेकिन आगे की बातें हमारे इसी पे डिपेंड करेगी। जैसे आपको स्टेट क्या है ये पता होना चाहिए, गवर्नेंस क्या है ये पता होना चाहिए, गवर्नमेंट है ये क्या है पता होना चाहिए, और इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी बहुत सारे हैं। जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक आपको पॉलिटी का कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ना चाहिए, चाहे आप कहीं भी पढ़े हो, किसी से पढ़े, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वी हैव मेड द प्रिंसिपल फॉर द गवर्नमेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? गवर्नमेंट विल वर्क अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, बट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स यू rights in guarantee. Why not constitution can expect from you to obey some duties? Are you getting? That's why fundamental duties have been mentioned in the constitution. There are 6 points only I have written on your board. What do you mean by the constitution? You can refer this. Constitution is a kind of document in which rule of governance, nature of government, the rights of people, separation of power, directive principles, and fundamental duties are mentioned. Are you getting? Democracy. If we do not have about the ideas about the democracy, we cannot understand about the constitution. First of all, we should understand it. आपने सुना होगा पहले जनता का, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, इसका डेफिनेशन सुना होगा, अब्राहम लिंकन ने जो दिया था। लेकिन ये डेफिनेशन वी कैन नॉट राइट इन आवर आंसर। आर यू गेटिंग? बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम दैट डेफिनेशन टुडे ऑफ द पीपल इन वेरी शॉर्ट। जनता का, है ना, अगर ये सिस्टम है जनता का तो ये अकाउंटेबल किसके लिए होगा? जनता के लिए, है ना। यानी द सिस्टम विल बी अकाउंटेबल टू द पीपल। जनता का है तो जनता के प्रति, है ना। ये तो अब्राहम लिंकन की बात थी। ये सिस्टम बना दिया अगर आपने, तो कोई तो चलाने वाला होना चाहिए ना, कोई तो रन करेगा इस सिस्टम को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? सरकार बनाते हैं, ठीक है। और सरकार ने, डेमोक्रेसी हैज बीन अडॉप्टेड इन यूएसए, इंडिया, बट द नेचर ऑफ गवर्नमेंट इज डिफरेंट इन बोथ कंट्रीज। नेचर ऑफ गवर्नमेंट,
Nature of government. Have you listened the name of Tunisia, Libya, Syria? These are the country. इन कंट्री में भी डेमोक्रेसी थी, लेकिन वहां के शासक इतना डिस्पोटिक हो गया, तानाशाह हो गया कि जनता का अधिकार ही नहीं सुरक्षित रहा, यानी राइट्स गारंटी वे में मिल ही नहीं पाया। तो वहां क्या हुआ, मूवमेंट आया बहुत सारा, है ना। और वहां पे सरकार के अगेंस्ट में जो जनता थी वो सड़क पर आ गई। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे पावर का सेपरेशन नहीं किया गया। जहां पावर विल नॉट बी द सेपरेटेड, मे बी द पावर कैन बी सेचुरेटेड इन वन हैंड। पूरी शक्तियां एक के हाथ में सेचुरेटेड हो सकती है। तो ऐसे में डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी नहीं रह जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पावर मस्ट बी सेपरेटेड, यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स। नेक्स्ट, जब पावर सेपरेट करेंगे तो ऑटोमेटिक जो राइट्स क्या होगा, वो गारंटी वे में मिल जाएगा, यानी द राइट्स ऑफ पीपल, द राइट्स ऑफ पीपल विल बी इन गारंटी। देखो मैंने सेम चीज लिख दिया, इधर भी लिखा इधर भी लिखा। ये बात समझ में आ रही है? देखेंगे आप, नेचर ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, द राइट्स ऑफ पीपल, और भी बहुत सारी बातें आएंगी, इधर भी बहुत सारी बातें आएंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये 6 पॉइंट ही नहीं है, बहुत सारे। लिसन अ स्मॉल स्टोरी फर्स्ट ऑफ ऑल। अब यहीं से हम बात आगे बढ़ाएंगे, है ना। When India was slave of British and India got freedom, at that time our leader have decided that we should adopt the democracy. Okay, there were many options at that time, but finally the leaders decided that we have to adopt the democracy because democracy was introduced by British in India and all the leaders were acquainted to this, sabhi परिचित थे उस सिस्टम से। First of all, our leaders have studied about the democracy. These are the features. फोन में जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं, और ये फीचर है डेमोक्रेसी। इस डेमोक्रेसी के फीचर्स को अकॉर्डिंग टू अस, हम लोगों के, आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हैव रिटन इन अ डॉक्यूमेंट। किसको लिखा? डेमोक्रेसी में जो भी फीचर्स होते हैं, जो भी राइट्स मिलते हैं पीपल को, इन सभी को किसमें लिखा? एक डॉक्यूमेंट में लिखा। उसका नाम क्या दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशन। एनीबडी विल आस्क यू विच कम्स बिफोर, डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशन? सबसे पहले कौन आता है? कौन आएगा पहले, डेमोक्रेसी या कॉन्स्टिट्यूशन? पहले डेमोक्रेसी को अपनाया आपने, तब न कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन। बिना कॉन्स्टिट्यूशन का डेमोक्रेसी कैसे चलेगा? मान लिया कि जिनको आपने प्राइम मिनिस्टर बनाए वो कहने मैं तो राजा हूं, अब मैं हटूंगा ही नहीं। और डेमोक्रेसी में क्या कहता है? पावर किसके पास होना चाहिए? पीपल के पास होना चाहिए, एंड पीपल कैन चेंज ऑन एवरी 5 years। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फाइनली पावर शुड बी इन द हैंड ऑफ पीपल। और ये बात अगर लिखी हुई नहीं होगी तो क्या कैसा होगा? दे कैन मैनिपुलेट बाय देयर माइंड, कर सकते कि नहीं? तो इसीलिए क्या किया गया, इन बातों में कोई मैनिपुलेशन ना हो तो हम लिख देते हैं कि जी ये बात लिखी गई है। जैसे you do not have to mind this, okay? Suppose that government has amended in Citizenship Act 1955, amended in 2019। there were many आपने देखा होगा कि आंदोलन वगैरह काफी चला था सीए के अगेंस्ट। वो क्या कह रहे थे वो लोग कि दिस अमेंडमेंट इज कंप्लीटली अगेंस्ट ऑफ आर्टिकल 15, 14, 25। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लिखा हुआ था तभी तो, नहीं लिखा होता तो क्या कहते आप कि किसके अगेंस्ट कह सकता था कोई? तो जब कोई बात लिखी होगी, एक एक पॉइंट्स मेंशन होगा, तो दैट विल बी द एविडेंस, एंड नो एनी गवर्नमेंट, no anybody will come in the power they can manipulate। Are you getting? So first of all, the leaders have studied about the democracy and they have written in a document,
डेमोक्रेसी इज द प्रोग्रेसिव सिस्टम विच इंक्लूड्स एवरी न्यू डायमेंशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन शुरू में नहीं था, लेकिन लगा कि नहीं सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, देन द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हैज बीन पास्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट। बात समझ में आ रही है? थोड़ा थोड़ा रिफ्लेक्ट करेंगे, अगर नहीं समझ में आए तो बिल्कुल पूछना आप, ठीक है। सूचना का अधिकार तो नाम सुना होगा ना, तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है पारित हुआ, ये नया डायमेंशन है कि नहीं, जुड़ा कि नहीं। राइट टू एजुकेशन, अर्लियर इन द कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज नॉट बीन मेड, बट लगा कि सिचुएशन ऐसा आ गया है कि राइट टू एजुकेशन होना चाहिए, तो ये बनाया गया कि नहीं। आर्टिकल 21 यानी 21 refers that every student will and everybody will get the education free by the state। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये डेमोक्रेसी ही इंस्पायर करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, क्या क्या बदलाव लाएंगे आप। डेमोक्रेसी की सिस्टम है ये, और इस सिस्टम को लगेगा कि नहीं ऐसे हमें बदलना पड़ेगा, तो ये क्या होगा, चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग। हम अमेंडमेंट क्यों करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? करते हैं ना अमेंडमेंट, संशोधन करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि यह डिमांड करता है। क्लियर हो रही बात? वी हैव अडॉप्टेड द डेमोक्रेसी एंड ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन, एंड कॉन्स्टिट्यूशन विल मूव अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सिस्टम, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सिस्टम। और इस सिस्टम के सेंटर में कौन है? पब्लिक, पीपल है, जनता। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले क्या है? डेमोक्रेसी। इसके रिलेशन को समझ रहे हैं आप? गुड। अब देखिए आप, हम आगे बढ़ते हैं। आपको सिलेबस मालूम है? हैव यू स्टडीड योर सिलेबस ऑफ जनरल स्टडीज? नहीं, कोई बात नहीं। तो ये आप कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, गवर्नेंस, ये सब जीएस पेपर सेकंड में पढ़ोगे आप, लेकिन आपको इथिक्स में भी पढ़ना पड़ेगा, जीएस पेपर फोर्थ में भी। तो मैं आपको जो डेमो दे रहा हूँ, यानी जो बता रहा हूँ, जो बेसिक बात है, आपको दोनों जगह थोड़ा सा लिंक करूंगा, तो आप थोड़ा सा माइंड को ओपन रखना। ओके देखिए, ये गवर्नेंस है। गवर्नेंस का मतलब होता है शासन, शासन। अगर जिसको गवर्नेंस नहीं पता हो तो इट विल बी पॉसिबल टू नो द गुड गवर्नेंस। जिनको गवर्नेंस ही नहीं पता हो तो गुड गवर्नेंस कैसे पता हो सकता है? हो सकता है। और गुड गवर्नेंस एक अलग से चैप्टर है आपका। ये गुड गवर्नेंस क्या अलग से चैप्टर है सेकंड पेपर में, जो अलग से क्लास चलाई जाती है इसके लिए। अब जिनको गुड गवर्नेंस नहीं पता होगा उनको एडमिनिस्ट्रेशन कैसे पता होगा? तो हमें गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन ये सारे टर्मिनोलॉजी देखेंगे कि नहीं देखेंगे। अब जिनको गवर्नेंस नहीं पता होगा, गारंटी है वो गवर्नमेंट के बारे में भी नहीं जानेगा, ठीक है। तो वन बाय वन वी हैव टू कम हियर। ओके, state, everything we will discuss related to this. So I can wipe this side and this side will be remain on the board and we will discuss one by one. Okay. From here you can note down. Okay. Just governance. इसको बोलते हैं शासन। ये शासन है क्या? आपको कोई आइडिया है शासन के बारे में? शासन कहते किसको है? कोई आइडिया है आपको? कोई भी पूछ दे, जैसे आप लोग जानते होंगे, देखते होंगे कि भाई नहीं शासन सही है, शासन गलत है, ऐसा लोग बोलते हैं। कोई आइडिया आपको कि शासन है क्या? मैं आपको जानने के लिए नहीं हम पूछ रहे हैं, बस हम ये जानना चाहते हैं ताकि थोड़ा इंटरेक्ट कर ले हम लोग, है ना। नहीं तो वी विल डिस्कस दैट। चले हम खुद बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नोट डाउन 2 and 3 लाइन, देन वी विल डिस्कस। ओके, whatever government does according to law is called governance. Government
वर्क्स, या आप ऐसे कह सकते हैं गवर्नमेंट, द वर्क्स ऑफ गवर्नमेंट, ऐसे द वर्क्स ऑफ गवर्नमेंट डैश डैश देना। पॉइंट नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ policies, implementation of policies, number 3, decision making। यही 3 काम है गवर्नमेंट। किसका? गवर्नमेंट। वट एवर गवर्नमेंट डज, वट एवर का मतलब होता क्या आखिर? सरकार जो कुछ भी करती है और जिस नियम के अनुसार करती है अकॉर्डिंग टू लॉ, उसको क्या कहते हैं लोग? गवर्नेंस कहते हैं। आखिर गवर्नेंस में सरकार करती क्या है? तो सरकार का पहला काम क्या है? नीति को बनाना, लागू करना और निर्णय लेना। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि निर्णय लेना पड़ता है टू कंट्रोल द सिचुएशन। जैसे अभी ट्रैक्टर मार्च हो रहा है फार्मर्स के द्वारा, तो ऐसी सिचुएशंस को हाउ टू कंट्रोल दिस सिचुएशंस? डेफिनेटली गवर्नमेंट विल टेक सम डिसीजन और नॉट। आर यू गेटिंग? अब देखिए यहां पर जो कुछ कौन कर रही है? सरकार कर रही है, यानी शासन में सरकार का काम। अब बताइए, हम लोग कहते हैं कि शासन सरकार जो है सही से नहीं चला, इसलिए हम लोग चेंज करना चाहते हैं। यानी इसका मतलब कि सरकार ने ना तो सही से पॉलिसी बनाई है, ना तो सही से लागू किया, ना तो सही से फैसला लिया, इसलिए शासन सही नहीं चला और हम लोग बदलना चाहते हैं। कहते कि नहीं कहते हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखिए हम लोग आते हैं, अगर सरकार गुड पॉलिसी बनाए, यानी सरकार की पॉलिसी गुड हो यानी अच्छी हो, और इसको गुड तरीके से लागू किया जाए और अच्छा डिसीजन लिया जाए, यानी गुड डिसीजन, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? गुड गवर्नेंस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मेरी बात समझ में आ रही है? यानी शासन को ही तो बेहतर करना ही गुड गवर्नेंस है ना। तो द क्वेश्चन मे बी रेज और नॉट, हाउ इट इज पॉसिबल टू मेक द गुड पॉलिसी, हाउ द क्वेश्चन मे बी रेज कि कैसे अच्छी नीति बनेगी। नीति अच्छी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए हमें करना? देखिए एक चीज समझाते हैं आपको, लेटेस्ट एग्जांपल। मैं चाहता हूं आपको एक शर्ट गिफ्ट करना, ठीक है? आपकी साइज जो है वो है 42 और कलर जो है वो व्हाइट है, पसंद करते हैं। आई हैव परचेज्ड ब्लैक कलर एंड साइज 48, आर यू गेटिंग? एंड आई विल गिफ्ट यू, वुड यू लाइक इट? नहीं। पॉसिबिलिटी क्या है? नहीं पसंद आया। यानी मैं देना चाहता हूं आपको और बिना आपसे पूछे हुए, यानी बिना आपके व्यू को जाने हुए, तो जाहिर सी बात है आपको पसंद नहीं आएगी। सरकार नीति बनाना चाहती है जनता के लिए और बिना जनता से पूछे हुए। सरकार ने किसानों के लिए कानून बना दिया, अमेंडमेंट कर दी, पर बिना सरकार जनता यानी किसानों से राय लिए हुए। तो आज किसान अगेंस्ट में है कि नहीं? तो ये गुड गवर्नेंस का ये पहचान है या गुड गवर्नेंस की पहचान नहीं है? ये नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? इट शोज द फेल्योरिटी ऑफ गुड गवर्नेंस, स्ट्रांगली यू कैन से दैट। मेरी बात क्लियर हो रही है? ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कानून खराब है, कानून हो सकता है सही है, अमेंडमेंट हो सकता है सही है, मे बी गवर्नमेंट इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट इज गुड, बट आपने बिलीव नहीं ले पाया हूं। You have not win the heart and emotion and views of the farmers। ये बात क्लियर हो रही है? जैसे आप शर्ट नहीं पसंद करे वैसे ही वो पॉलिसी को पसंद नहीं करना। तो इसका मतलब ये होता है कि पॉलिसी फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन होना चाहिए पीपल का, तभी तो अच्छी नीति बन पाएगी, है ना जी? तो क्वेश्चन यूपीएससी हैज आस्क्ड द क्वेश्चन इन मेंस एग्जाम
कि व्हाट आर द रोल ऑफ पीपल इन पॉलिसी फॉर्मेशन, इट विल स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी, डिस्कस इट विद एग्जांपल। ये बात समझ में आ रही है? यानी नीतियों के निर्माण में जनता की क्या भागीदारी हो सकती है, चर्चा करें, और विद एग्जांपल, यानी कुछ एग्जांपल है आपके पास तो दें आप इसको। क्लियर हो रही मेरी बात? अब दूसरी बात, आपने हैव यू लिसन द नेम ऑफ श्री अन्ना हजारे? तो अन्ना हजारे ये क्या है? ये एक सिविल सोसाइटी के सदस्य। सिविल सोसाइटी समझते हैं आप? सिविल सोसाइटी का मतलब मैं आपको मोटा मोटी समझाता हूं, ठीक है? ये पूरा मानव है इंडिया का, मतलब पूरे नागरिक है ये मानव है। मानव को इस साइड वाले को छांट दीजिए जो बालक है, मंदबुद्धि है, मानसिक रूप से विकृत है, और जो बाकी जो बच गए वो क्या है? सिविल सोसाइटी के सदस्य। एक मोटा मोटी आपको अर्थ बताया, पढ़ेंगे आप गवर्नेंस जब पढ़ेंगे तो सिविल सोसाइटी पढ़ाया जाएगा आपको। अब जाहिर सी बात है अन्ना हजारे भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं देश के, है ना? उन्होंने दबाव बनाया था एक दौर में मनमोहन गवर्नमेंट में लोकपाल बिल के लिए। दे हैव मेड द प्रेशर, ह्यूज प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू फॉर्म द लॉ टू elect and appoint the lokpal to curb the corruption from the system. Are you getting my point? अब यूपीएससी कैसे इस क्वेश्चंस को रेज की थे मेंस में? व्हाट आर द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन पॉलिसी फॉर्मेशन, डिस्कस इट विद एग्जांपल। तो अन्ना हजारे का एग्जांपल होगा ना आपके पास, होगा कि नहीं? तो आप उसको लिख सकते हैं ना? यस। अब है मीडिया। अब ये आपको एग्जांपल बहुत अच्छा मिलेगा। The role of media. Media is known as a fourth pillar of democracy. The mainly works of media, whatever government take the decision, that the decision can be acquainted to the people through media. मीडिया क्या करेगी? बताएगी इसको, और जनता की जो ग्रीवांसेस है, शिकायत है, वो एड्रेस करेगी किसको? सरकार को। अब सरकार का इंटेंशन पता चला थोड़ा सही नहीं है, और मीडिया को उन्होंने मान लिया, खरीद लिया, तो जनता को जो जानकारी मिलेगी यानी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो कैसा? सही या गलत? गलत। तो इससे डेमोक्रेसी को नुकसान होगा या फायदा होगा? नुकसान होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मान लिया कि मीडिया है और रिपोर्टिंग वो सही कर दे, इवेल्युएशन का करना काम जो है ना उसी का करे, मीडिया का इवेल्युएट करती पॉलिसी को। जैसे फार्मर्स बिल है, इसमें क्या सही है क्या गलत है? अगर हम फार्मर है, खेत में काम करते हैं, आई डू नॉट हैव आइडियाज एंड आई डोंट नो हाउ टू रीड द बिल एंड प्रोसीजर एंड प्रोविजंस, बट वी विल गेट द इंफॉर्मेशन इन आवर टर्मोलॉजी, इन आवर लैंग्वेज, विद द हेल्प ऑफ मीडिया। और मीडिया पता है चल रहा है कि नहीं वो तरफदारी कर रही है। क्लियर हो रही बात? तो क्या ये लोकतंत्र के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए नुकसान है कि नहीं? तो गुड गवर्नेंस में क्या होना चाहिए? बेहतर रोल होना चाहिए, पॉजिटिव रोल होना चाहिए। Then UPSC has already asked this question, the positive role of media in policy formation will strengthen the democracy. क्या यह लोकतंत्र को मजबूत करेगा? ये बात समझ में आ रही है आपको? तो हम लोग आगे चले। गुड। अब बात इम्प्लीमेंटेशन की आती है। इम्प्लीमेंट कौन करेगा? तो जो भी इम्प्लीमेंट की बात आती है तो इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे? अब माना कि सरकार एलपीजी जो गैस पे सब्सिडी देती है ना, पहले जब देती थी, आज से बहुत पहले, तो इसमें बीच वाले लोग जो है ना वो फायदा उठाता था, जिनको नहीं चाहिए था सब्सिडी वो ज्यादा उठा रहे थे। तो सरकार ने क्या किया? नहीं, हम जो लाभार्थी है ना, जो बेनिफिशियरी है ना, उनके डायरेक्ट अकाउंट में डालेंगे पैसा। ऐसा सरकार कर रही है। हाउ इट हैज बिकम द पॉसिबल? हाउ? थ्रू द टेक्नोलॉजी। Through the technology, then the UPSC will ask the question, the role of technology in policy implementation will promote the good governance. अब आप बता सकते हैं कि एग्जांपल देकर के डीबीटी वगैरह का, तो गुड गवर्नेंस में ये पॉलिसी इंप्लीमेंट। अब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सबके लिए शिक्षा। अब पता चला कि आप पढ़ना चाहते हैं, टाइम नहीं है,
तो आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस चल जाएंगे। टेक्नोलॉजी हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है ना, हो रही कि नहीं हो रही है? जैसे गवर्नमेंट हैज मेड द रूल दैट every government employee has to come the office on time and exit the office and leave the office on time। पर इससे पहले करते क्या थे लोग? चले गए, आ गए, कोई ये नहीं। गवर्नमेंट हैज इंस्टॉल्ड द बायोमेट्रिक सिस्टम। आर यू गेटिंग? तो आपको आना है तो यू हैव टू पुट योर थंब एट द टाइम ऑफ एंट्री, एट द टाइम ऑफ एग्जिट। और यही नहीं, गवर्नमेंट हैज आल्सो इंस्टॉल्ड द सीसीटीवी कैमराज एंड कनेक्टेड टू द हेड ऑफिस एंड द बॉस विल वॉच एवरी एक्टिविटीज व्हिच आर गोइंग ऑन इन द ऑफिस और नॉट। मेरी बात समझ में आ रही है? तो टेक्नोलॉजी कितना रोल प्ले कर रही है? कर रही है ना। तो आपसे अब क्वेश्चन पूछेगा कि द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज एंड डेफिनेटली इट विल प्रमोट द गुड गवर्नेंस। बिल्कुल करेगा। गुड गवर्नेंस के लिए टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। क्लियर हो रही बात? तो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी है, आपसे पूछा जाएगा। यहां तक समझ में आ गई बात? अब डिसीजन मेकिंग। अब अगर सरकार के डिसीजन धर्म के आधार पर हो, रिलीजन, अकॉर्डिंग टू रिलीजन, अकॉर्डिंग टू कास्ट, तो आप कहेंगे उसको गुड डिसीजन। द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी न्यूट्रल, दैट शुड बी बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट शुड बी बेस्ड ऑन लॉ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देन सबका साथ, सबका विकास एंड सबका विश्वास विल बी फुलफिल्ड। सबका साथ, सबका विकास, it is the concept of good governance, but it will possible when the decision will be neutral। Do you agree or not? मेरी बात समझ में आ रही होगी? अब आपको हम ले चलते हैं इथिक्स में, ले चलूं थोड़ा। देखिए, ये तो पॉलिटी में पढ़ेंगे आप, आपको पेपर सेकंड में पढ़ाया जाएगा, फिर यही बात को इथिक्स में आप पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा मैं ले चलता हूं आपको जीएस पेपर फोर्थ में। देखिए, ये गुड करने के लिए इंसान भी तो गुड चाहिए ना। कि कोई गलत इंसान जाकर के गुड कर सकता है? कहाँ नहीं कर सकता है गुड। तो उस जो पॉलिसी में जो बनाते हैं, वो बनाते कौन है? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट में जो प्रतिनिधि बैठे हैं वहां, वो उनको चुनता कौन है? जनता चुनती है। अगर हम गलत इंसान को चुन के भेज दिया तो पॉलिसी कैसी बनेगी? गलत बनेगी। क्लियर हो रही बात? तो उस रिप्रेजेंटेटिव में यानी गवर्नमेंट में जो भी लोग हैं, उनमें क्या होना चाहिए? वैल्यूज होना चाहिए कि नहीं? तो उनमें वैल्यूज होना चाहिए, इथिकल एंड मोरल होना चाहिए ना। मोरल, जैसे मान ले कि कोई गलत डिसीजन ले लिया और उसका नुकसान हो रहा है, और मोरली कुछ जब अकाउंटेबिलिटी ले ही नहीं रहा हो मिनिस्टर, तो बताइए डिसीजन गलत है ना कि नहीं? तो उसके अंदर मोरल वैल्यू होना चाहिए। नहीं, ये काम मेरा था और हमने गलत डिसीजन लिया, इससे नुकसान हुआ, सो आई शुड रिजाइन फ्रॉम माई पोस्ट। क्लियर हो रही बात? तो पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए आपको वैल्यू चाहिए, तो आप इथिक्स में पढ़ोगे कि व्हाट आर द रोल ऑफ मोरल एंड इथिकल वैल्यूज इन गुड गवर्नेंस। इन गुड गवर्नेंस, तो ये ही बात, गवर्नेंस ये हो गया, इसको गुड करेंगे तो वैल्यू चाहिए। तो ये वहां पे टेक्नोलॉजी की बात नहीं करेंगे, वहां पे वैल्यूज की बात करेंगे। मेरी बात क्लियर हो रही है? अब गुड जो इंप्लीमेंट करेगा, वहां भी इंसान को चाहिए गुड, और गुड के लिए वही मोरल वैल्यू, जैसे अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, ऑब्जेक्टिविटी, है ना। ये सारे वैल्यूज है जब आप पढ़ेंगे इथिक्स में। तो डिसीजन मेकिंग भी जब न्यूट्रल कब होगा इंसान? कोई भी इंसान न्यूट्रल कब होता है? when they will decision according to logical, they will be logical. when they will be biased, it will be possible to be neutral? No। तो डिसीजन जो न्यूट्रल तभी होगा जब उसके अंदर मोरल वैल्यूज हो, है ना, सही और गलत का पहचान हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप इस सब चीजों को फिर एथिक्स में पढ़ेंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है? देखो, ये तीन काम को याद रखना है आपको। अब हम चल रहे हैं आपको गवर्नेंस के बाद एडमिनिस्ट्रेशन, वेयर डू यू वांट टू गो। ओके, यहां पर क्या था? गवर्नेंस था, है ना, गवर्नेंस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन क्या है?
प्रशासन. Okay, it is the basic concepts about the prashasana. It means administration. First of all, we will note down two lines, then we will discuss. Okay, it is functional body of the government. The main works of this body are, point number one, implementation of policies. Number two, policies. Number two, decision making. One work I have skipped which has been written here. फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसीज कहाँ था? गवर्नेंस में था, है ना. यहाँ पर क्या है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड डिसीजन मेकिंग. इंटरव्यू में अगर आपसे पूछता कि क्यों जाना चाहते हैं प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों, आप कह दोगे नहीं सर, आई वांट टू गो बिकॉज आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ पॉलिसी फॉर्मेशन. पॉलिसी फॉर्मेशन काम नहीं है आपका, आपका इम्प्लीमेंट करना है ना. उसके लिए तो हम सरकार बनाते हैं ना, वो बनाती है पॉलिसी. आप थोड़ी कोई आईएएस बनाया था पॉलिसी को. ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो किनके अगेंस्ट में है? सरकार के अगेंस्ट में है. बात कौन कर रहे हैं? मंत्री कर रहे हैं. क्लियर हो रही बात? और वहां पर मान ले कि इस पॉलिसी का जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आई तो कौन करेगा? आप करेंगे. क्लियर हो गई बात? देखो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड डिसीजन मेकिंग. यूपीएससी आपसे डिसीजन मेकिंग एप्टीट्यूड टेस्ट करती है, और वो करती है दो पेपर में. एक तो आपका प्री में सी सेट चलता है, नाम सुना है ना आपने, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट. एप्टीट्यूड का मतलब होता है अभिक्षमता. और कौन सी अभिक्षमता, यानी कैसी क्षमता? डिसीजन लेने की क्षमता. और वो डिसीजन लेने की क्षमता का टेस्ट होगा कैसे? तो उसके लिए मान लिया कि आपको एक पैराग्राफ दिया और इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, और आपको डिसीजन लेना है कि इस क्वेश्चन का आंसर इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग कौन सा एप्रोप्रिएट होगा. क्लियर हो रही बात? तो ये डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी. इथिक्स में जाएंगे तो केस स्टडी, और वहां पर भी भाई सी सेट वाला, वहां पे था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, वहां ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, केवल क्वेश्चन रहेगा एंड यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक. गेटिंग माय पॉइंट? तो डिसीजन मेकिंग, जैसे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, अधिकतर पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में वो सस्पेंड नहीं होते, डिसीजन लेने में सस्पेंड होते हैं. जैसे मान लिया कि हाथरस केस में, आपने देखा था हाथरस केस, एसएसपी ने क्या किया? राहुल गांधी का कॉलर पकड़ा और थोड़ा सा धक्का दिया, वो गिर गए. ये लोकतंत्र है. इट इज अ डेमोक्रेसी वेयर द पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैज respect and you cannot ignore it. Are you getting my point? And he's a leader of, and he's a member of parliament. Are you getting? उन्होंने उसके साथ सलूक बेहतर नहीं किया, डिसीजन उनका गलत था एसएसपी का, तो कल ही होके क्या हो गए? वो सस्पेंड हो गए. सरकार भले दूसरी की थी, विचारधारा अलग थी, लेकिन सस्पेंड होना था. प्रेशर है ना ये. तो ये लॉ में, लॉ इंप्लीमेंट वहां पे नहीं करना था कोई पॉलिसी को, वहां पे क्या था? डिसीजन लेना था. डीएम ने डील नहीं किया इस घटने को पूरे अच्छे तरीके से, तो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा सरकार को कि आपने क्यों नहीं हटाया उसको. 4-5 दिन पहले की घटना है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्यों नहीं हटाया. इसका मतलब उनका जो है ना डिसीजन सही नहीं था टू डील विद द इंसिडेंट. आर यू गेटिंग? तो डिसीजन मेकिंग ये बहुत अहम वर्क है एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. क्लियर हो रही बात? अब देखो, it is the functional body of government. Functional body of government.
हमने यहाँ लिखा था वट एवर गवर्नमेंट डज, सरकार जो कुछ भी करती है, और यहाँ क्या कर रहा हूँ, सरकार का यह कार्यकारी अंग है, काम करने वाला अंग है। आप मेरी बॉडी को गवर्नमेंट मान लो थोड़ा देर के लिए, दिस बॉडी इज गवर्नमेंट एंड इट इज द फंक्शनल बॉडी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सपोज दैट आई एम राइटिंग अ लेटर, और वो लेटर मैं लिख रहा हूँ और लेटर बहुत अच्छा है, द लेटर इज वेरी वेल, ओके। कोई ये नहीं कहेगा, nobody will tell me your hand has written the very well letter. Everybody will tell me you have written good letter. Are you getting my point? You have written good letter. Clear हो रही बात? Hand has written but the credit will get me. ये हाथ लिख रहा है, क्रेडिट किसको मिलेगा? मुझे। आज तक किसी ने मुझे नहीं कहा कि आपका पैर बहुत अच्छा चलता है। मेरी बात समझ में आ रही है? सब कहेगा नहीं आप बहुत अच्छा चलते, क्रेडिट विल गेट मी। ये फंक्शनल बॉडी है, ये फंक्शनल बॉडी है। एडमिनिस्ट्रेशन इज द फंक्शनल बॉडी ऑफ गवर्नमेंट। आप अच्छा से काम करेंगे, इंप्लीमेंट आप करेंगे अच्छे से, डिसीजन आप लेंगे, लेकिन क्रेडिट किनको मिलेगी? गवर्नमेंट को मिलेगी। जिस तरह से हाथ को क्रेडिट नहीं मिलता है ना, उसी तरीके से क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं। क्लियर हो रही बात? सरकार की पॉलिसी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, इंप्लीमेंट अगर अच्छा नहीं होगा तो जनता को लाभ नहीं मिलेगा, तो जनता बदलेगी ना 5 साल के बाद। क्लियर हो रही बात? अब मान ले कि मुझे ये कह दे कि आपका हाथ जो सही से नहीं, मतलब आप लेटर सही से नहीं लिख रहे हो, जनता डायरेक्टली किसको ब्लेम करेगी? गवर्नमेंट को। आप किसको ब्लेम करेंगे? आपका हाथ को तो नहीं करेंगे, मुझे कहेंगे। तो मैं क्या करूंगा? कोशिश करूंगा इंप्रूवमेंट की। ऑर्डर किसको करूंगा? हाथ को। तो गवर्नमेंट ऑर्डर किसको करेगी? एडमिनिस्ट्रेशन को। क्लियर हो रही बात? हाँ, तो ये फंक्शनल बॉडी है, यानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करती है। जैसे वैक्सीनेशन अभी चलेगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट में चलेगा, है ना। जिम्मेदारी जाहिर सी बात है डीएम साहब को मिलेगी, मिलेगी कि नहीं? अब इनको इंप्लीमेंट करना होगा। अफरा तफरी नहीं हो, नहीं लगी कि सब आदमी को एक जगह जमा हो गए, लो मुझे लगाओ वैक्सीनेशन, जितना को लगेगा नहीं उतना कोरोना हो जाएगा। तो आपको मैनेज करना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा। आपने भीलवाड़ा मॉडल का नाम सुना होगा, कोरोना लॉकडाउन के दौरान भीलवाड़ा मॉडल, जहाँ की डीएम थी, सतीश डीएम थी, वो टीना डाली। तो कैसे डील की? एक डिसीजन था उनका, तो गवर्नमेंट को फायदा हुआ ना, क्रेडिट जाएगा तो गवर्नमेंट कहेगी नहीं भाई हमने होने नहीं दिया। क्लियर हो रही बात? तो यही है, अगर हम इसको बेहतर करना चाहते हैं, पॉलिसीज बेहतर करेंगे हम, यानी इंप्लीमेंट बेहतर तरीके से करेंगे, गुड तरीके से, और डिसीजन हमारा गुड होगा, तो इसके लिए हमें वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इसके लिए कौन? इथिकल एंड मोरल वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। इसलिए यूपीएससी 2014 में क्वेश्चन और 15 में पूछिए क्या कि व्हाट आर द व्हिच काइंड्स ऑफ वैल्यूज आर नेसेसरी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्कस इट। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको सारे वैल्यूज बताना है। तो आप इसमें स्पेशली कोड करेंगे, जब आप एथिक्स पढ़ेंगे। तो एक नोलान कमिटी ने बना था लंदन में, नोलान कमिटी। ग्रेट ब्रिटेन में नोलान कमिटी का गठन किया गया था कि आप उन इसेंस को बताएं जो इथिकल एंड मोरल हो, जो प्रशासन के लिए जरूरी है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है। तो इन्होंने क्या कहा था? सेल्फलेसनेस, है ना, ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी, ओपननेस, लीडरशिप, अकाउंटेबिलिटी, इस तरह की कुछ बात बताई थी। तो यही वैल्यूज हो गया, किसके लिए? प्रशासन के लिए। तो आप कोड करेंगे, इथिक्स में फिर इस बातों को आप पढ़ेंगे, पॉलिटी में तो पढ़ेंगे। क्लियर हो रही बात? यानी एक तीर से कई निशाना लगेगा अगर आपको पढ़ने का आइडिया पता हो तो। ठीक है, तो हम लोग आगे चले। अब हम लोगों ने देख लिया गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। रियली यू विल स्टडी द इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी एक्चुअली वहां ऊपर में कैमरा में नहीं आता। इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी।
इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी नाम सुनते ही आपको पता होना चाहिए कि आखिर हम पढ़ेंगे क्या, इसमें कौन सी बात आएगी। ठीक है, दो चीज, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट प्लस फंक्शन। We study about the formation of a state and function under Indian polity। क्लियर हो रही बात? अब स्टेट बनेगा कैसे और वो स्टेट काम कैसे करेगा, जैसे मोबाइल बना कैसे और इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर डाला जाए कि ये मोबाइल जो है फंक्शन करना शुरू हो जाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो स्टेट नाम का कुछ चीज है, थोड़ा देर के लिए इमेजिनेशन करना है ना। स्टेट में हमने फंक्शन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डाला है वो कॉन्स्टिट्यूशन नाम का सॉफ्टवेयर, जैसे विंडो 7 विंडो 8 तक नाम सुना होगा ना आपने कभी। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन नाम का एक सॉफ्टवेयर डाल दिया कि इसमें स्टेट में वो फंक्शन करेगा, लेकिन स्टेट का फॉर्मेशन होगा कैसे? व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट? तो स्टेट कहलाने के लिए, स्टेट कहलाने के लिए देयर आर 4 ग्राउंड्स। पहला, फिक्स्ड लैंड चाहिए। सपोज दैट 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर इज एरियाज ऑफ दिस कंट्री। भारत का मैप लाइए माइंड में थोड़ा सा, ये फिक्स्ड लैंड है कि नहीं है ना? ऐसा नहीं कि कल होके बढ़ गया, ज्यादा घट गया, ऐसा नहीं है, फिक्स्ड लैंड है। थोड़ा सा देखो, चाइना आने की कोशिश किया तो हमने कितना विरोध किया उसका, अभी भी विरोध चल रहा है, क्योंकि मेरा फिक्स्ड लाइन है जी, आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये फिक्स्ड लाइन है। अब आप ये बताएं कि इस फिक्स्ड लाइन में लोग रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं? रह रहे हैं ना। तो पॉपुलेशन, अब थोड़ा सा क्वेश्चन में भी रेज, अगर इस पॉपुलेशन को फ्री छोड़ दो तो हो सकता है कि किसी को नुकसान हो जाए, किसी को फायदा हो जाए, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगा। तो टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ पीपल, सच अ गवर्नमेंट, सच अ पावर शुड बी और नॉट, बाय विच वी कैन फियर एंड फॉलो द रूल्स। आर यू गेटिंग? तो हमने क्या बना दिया? गवर्नमेंट बना दिया। और गवर्नमेंट, सपोज दैट वी हैव मेड द गवर्नमेंट and our government will work under the pressure of USA and Britain. It will be possible to fulfill the needs of the people of our country? No. Our government should be powerful. No any power can repress our government, and our government should not come under the pressure of any other country. Are you getting my point? It means sovereign hona chahiye, sovereign. पावरफुल। क्लियर हो रही बात? अब इंडिया में है कि नहीं ये चीज? लैंड भी है, पॉपुलेशन भी, गवर्नमेंट भी है, पावरफुल भी है। क्लियर हो रही बात? ये फिक्स्ड लैंड एंड पॉपुलेशन आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे। कहां पढ़ोगे? मैं गवर्नमेंट पढ़ाऊंगा और सोवरेन पढ़ाऊंगा। अब यहां पे आने के लिए मुझे, इस पॉइंट पे आने के लिए मुझे इतना बताना पड़ा। क्यों? अब हम ये तो देख लिया ना कि गवर्नमेंट इज द पार्ट ऑफ स्टेट। गवर्नमेंट इज द पार्ट ऑफ स्टेट। जैसे ये मान लिया कि ये स्टेट मान लो, है ना, ये फिक्स्ड लैंड है पूरा का पूरा, है ना जी। और इसके अंदर जो ये जो फंक्शन कर रही है बॉडी, इसको कहां से रेगुलेशन हो रहा है? माइंड से रेगुलेट हो रहा है। जैसे मैंने कहा मैं लिख रहा हूं, ये कौन कह रहा है हाथ को? माइंड कह रहा है। क्लियर हो रही बात? तो ये माइंड हो गया। ये इस स्टेट का गवर्नमेंट क्या है? माइंड है। ये आर यू गेटिंग माय पॉइंट? गुड। और ये माइंड किसी से ना डरे, सॉवरेन हो गया। क्लियर होगी? तो गवर्नमेंट, अब हम जानेंगे कि अगर ये माइंड है हमारे, ये इसका पार्ट है, इस बॉडी का पार्ट है माइंड,
तो ये फंक्शन किसके लिए कर रहा है? बॉडी के लिए। तो गवर्नमेंट किसके लिए फंक्शन करेगी? स्टेट के लिए। और स्टेट किसके लिए? पीपल के लिए। क्लियर हो रही बात? अब गवर्नमेंट जब फंक्शन करेगी स्टेट के लिए, तो अपनी मर्जी तो नहीं चलाएगी। इसके लिए सॉफ्टवेयर क्या डाल दिया हमने? कॉन्स्टिट्यूशन डाल दिया। ये क्लियर हो रही बात? तो अब हम लोग जानेंगे गवर्नमेंट है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय गवर्नमेंट, और इससे रिलेटेड कुछ और सी बात। ठीक है, हेडिंग प्लीज, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट it is an institution to fulfill the objectives of the state, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट। जाहिर सी बात है, यह एक संस्था है और उसका उद्देश्य क्या है, उसका काम क्या है? स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना, स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना। देयर आर 3 organs ऑफ इट। वो कौन कौन से ऑर्गन हैं? वो हैं लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। ये बात समझ में आ रही है? लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट के ही 3 ऑर्गन है। माइंड में होता है ना, सेरिबेलम, नाम सुना होगा आपने। तो इसी तरह से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, दीज आर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है। कोई पूछे क्या है गवर्नमेंट, तो आपका इंस्टीट्यूशन है। और उसकी कितने बॉडी हैं? 3 बॉडी है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। देखो, लेजिस्लेचर में टॉप पे जो हमारा आता है वो कौन है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट है ना। और पार्लियामेंट हैज फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग: लोकसभा, राज्यसभा, एंड प्रेसिडेंट। क्लियर हो रही बात? 2015 में पीटी में क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने, पार्लियामेंट इज फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, ऑल। क्या होगा आंसर? ऑल। Why president is a part of parliament? Because when any bill will be passed from both houses and will be signed by president, then it will be called act. Act. Are you getting my point? जब तक ये साइन नहीं करेंगे कानून नहीं बनेगा। इसका मतलब कानून बनाने में उनका योगदान है ना। और कानून बनाने में जो भी योगदान होगा उस बॉडी का हिस्सा होगा। और कानून बनाने का काम किसका है? पार्लियामेंट का। तो जाहिर सी बात है पार्लियामेंट ये पार्ट होंगे कि नहीं। अब देखिए, लोकसभा में हमने चुनाव करके यहां भेजा था अपने रिप्रेजेंटेटिव को, और आपसे कोई पूछता है कि सरकार क्या, तो आप कहते हैं कि नहीं, जो जनता के द्वारा जो चुन करके हम भेजते हैं वही सरकार है। नहीं, गवर्नमेंट में ये भी शामिल है। क्लियर हो रही बात? तो गवर्नमेंट इज अ काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन। एग्जीक्यूटिव में टॉप पे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल, ये सब क्या है? एग्जीक्यूटिव के पार्ट। यहां कानून बनना है, यहां इंप्लीमेंट होना, और यहां क्या होगा? जजमेंट होगा ना। एसी मींस
HC मतलब और LC लोअर कोर्ट। क्लियर हो गई? तो गवर्नमेंट में देखो सब कितने लोग शामिल है। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे चले हम लोग। क्या एडमिनिस्ट्रेशन किस में आएगा? ये गवर्नमेंट, बोलिए हाँ। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, बोलिए हाँ। गवर्नमेंट का जब 3 ऑर्गन, तो गवर्नमेंट का काम कितना बताया मैंने? 3 बताया। पॉलिसी बनाना, लागू करना। एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या बताया? लागू करना और डिसीजन लेना। तो अब एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ आएगा, किसके नीचे? नहीं, जाएगा एग्जीक्यूटिव बॉडी के बिल्कुल राष्ट्रपति से लेकर के और एक कर्मचारी तक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो सब के सब किस बॉडी में आएंगे? वो एग्जीक्यूटिव में आएंगे। क्लियर हो रही बात? लॉजिकली एक एक चीज को समझेंगे ना तो आपको सारा क्लियर होगा, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है, किसका पार्ट है? एग्जीक्यूटिव का पार्ट। समझ में आ गई बात आपको? अब हम लोग आते हैं सोवरेन। एक टर्मिनोलॉजी लिखा था ना भी, स्टेट के लिए सोवरेन होना बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं क्या? पावरफुल, है ना? पावरफुल। इट हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स। इसको अगर शब्दों में अगर हम बोले ना, वर्ड में यानी लाइन में, सेंटेंस में, तो इसका मतलब क्या? देयर विल बी नो एनी अथॉरिटी अबव द स्टेट। इस स्टेट के ऊपर कोई दूसरा अथॉरिटी नहीं होगी। क्लियर होगी बात? इट हैज बीन कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। External. Okay. Internal refers the social, economic, political, religion. External refers enemy, friends, and treaty. And treaty. देखो, nobody, no authority will be above the state. Are you getting? It means no any government, other government, या no any other country would be allowed to interfere in our internal matter. Any problem or not? सोशल, सोशल में रिलेटेड होता है एडुकेशन, हेल्थ, जैसे हम अभी रोक लगा दें, जो भी प्लेन ब्रिटेन से आ रहा है हम उसको रोक लगा दें, नहीं आने दें। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा एम क्या है? हेल्थ इश्यू है, हम लोगों को बचाना चाहते हैं। ब्रिटेन का कहेगा कि नहीं, हम हमारा प्लेन जाएगा इंडिया। अब बताइए इंडिया क्या करेगा? रोक लगा देगा कि नहीं? No any other country would be allowed to interfere in our internal matter. Health issue is related to our people. It's the duty of government to protect the people from the disease. Do you agree or not? That's why the government can take every possible steps to protect it. अब लॉकडाउन लगा दें, हम लगा देंगे नहीं तो वो कहेगा नहीं आप आने क्यों नहीं दे रहे हैं, सबके लिए बंद क्यों कर दे रहे हैं दरवाजा?
भाई ये हमारा इंटरनल मैटर है, सोशल इशू है। क्लियर हो रही बात आपको? गुड। अब जैसे किसी चाइनीज को भी आने नहीं दें, वुहान वाले जितने वुहान में रहते हैं किसी को ना आने दें, ये हमारा मैटर है। गवर्नमेंट हैज फॉर्म द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नाम सुना है आपने? अब अमेरिका का ही नहीं, हमारे कल्चर में जो भी चीजें उसको भी पढ़ाइए, आप शामिल कीजिए। ये हो सकता है? नहीं ना होगा ये। क्लियर हो रही बात? क्यों? क्योंकि इट्स आवर इंटरनल मैटर रिलेटेड टू आवर सोसाइटी। क्लियर हो गई बात? इकोनॉमिक मैटर, government wants to reform in agriculture, government wants to make reform in agriculture, that's why the government has amended its 3 laws, and farmers are completely against of that amendment. Any problem? In that situation, the government of Canada tries to interfere. सुना होगा आपने? It will be possible to allow that government to interfere in our economic matter. ये पॉलिसी हमारी इकोनॉमिक से रिलेटेड है कि नहीं? इकोनॉमिक मैटर से रिलेटेड है, तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा को कैसे अलाउड कर देंगे हम लोग? करेंगे? नहीं ना। समझ में आ रही है बात? तो अलाउड नहीं कर पाएंगे, है ना? जो भी होगा वो हमारी सरकार करेगी, जनता समझेगी। पॉलिटिकल मैटर, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल दे सकते हैं, है ना? एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल दे सकते हैं, कनाडा इशू दे सकते हैं, अगर आपको लिखना हो बताना। पॉलिटिकल मैटर, देखिए हमारा इलेक्शन होता है हमारे क्या, इलेक्शन में एक से एक स्टार प्रचारक होते हैं ना। कभी उस स्टार प्रचारक में किसी विदेशी का लिस्ट देखा आपने? कोई विदेशी आगे प्रचार करते हुए नहीं देखा। ये रही बात। अब चाइना ये कहे कि नहीं, आप इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं रहना चाहिए, वो खूब खर्च करे और डेमोक्रेसी को हटाने की कोशिश करे। पॉसिबल है? अलाउड करेगी क्या सरकार? नहीं करेगी गवर्नमेंट। रिलीजियन, you have to understand like this, triple talaq is related to religion issues. Any problem? And especially for women, the government, according to Supreme Court has declared it unconstitutional because Article 14 of the Constitution refers to the equality. Okay, government has made the law against the triple talaq, but no any Muslim country can interfere, and no any other Muslim country has raised this issue. कोई किसी ने बोला? किसी ने नहीं। The religion issue, it is also our internal matter, where that religions will be originated from other country. जैसे इस्लाम का ओरिजिन कहाँ है? नहीं, सऊदी अरब। क्लियर हो रही बात? अब कोई इंटरफेयर किया? नहीं किया। तो ये क्यों? क्योंकि ये इंटरनल मैटर है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको? अब इनिमी, एक्सटर्नल, our country can decide which country is enemy for us. Enemy, it means a country will harm our national interest, that will come under the enemy criteria, and you can understand which will come under this. Yes, कुछ will be declared होगा, some country declare हो सकते हैं, कुछ अनडिक्लेयर्ड हो सकते हैं, पर माना जाएगा। क्लियर हो गई बात? फ्रेंड्स, our national interest will match with other country, that the country will become friends. Okay, जैसे हमारे को इक्विपमेंट्स दे दे कोई, जैसे एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स देता है इजराइल, फ्रेंड्स होगा कि नहीं? कोई अभी मुझे प्याज की कमी है और ऑनियन अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं किसी भी कंट्री से, कंट्री फ्रेंड होगा तभी तो देगा, इनिमी होगा तो देगा वो नहीं ना देगा। Treaty, it is the main matter, and the question will be raised from here. Treaty, देखिए, no any organization, no any country can make pressure on the government to sign any treaty if our government thinks that
our national interest will be benefited from this treaty, definitely they can sign. Otherwise, they can ignore it. Do you agree or not? Suppose that agriculture issue related to WTO. Okay, sometime USA try to raise the issue regarding the developing country, but India strongly oppose it. क्लियर हो गई बात? जैसे एक टाइम में यूएसए ने ये कहा था कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज फिक्स्ड द प्लान टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर पावर प्लांट by 2022. Okay, USA has made the pressure on the government to import the photovoltaic cell from USA, but government is promoting the indigenous manufacturing sectors, okay, to generate and to manufacture photovoltaic cell. Okay, at that time external ministers was late Sushma Swaraj. She strongly opposed that. It is our internal matter, and I cannot bow down. मैंने झुक नहीं सकते कहीं to sign any treaty and agreement with any country to import and export. It's depend on us. If we feel that it is the betterment for our national interest, definitely we can do it. Otherwise, it is not possible. ये बात समझ में आ रही है आपको? The rights of people. Now we are going to come, but we are not going to study about the fundamental rights, but the basic concepts about the rights of people, which is guaranteed. The rights of people, the rights. People, guaranteed. Guaranteed rights is called the fundamental rights. Fundamental rights get to the person. Gets to the person. Person is divided into two parts: citizen, foreigners. Any problem? UPSC has asked the question, fundamental rights gets only the citizen. क्या सही है गलत है? अगर एक लाइन पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट केवल सिटीजन को मिलता है, तो क्या ये सही है? बोले ना आप लोग, या तो हाँ बोलोगे, नहीं बोलोगे, यही तो बोलोगे ना. देखो नहीं, फंडामेंटल राइट्स गेट्स टू द पर्सन. पर्सन दो तरह के, सिटीजन भी हो सकते हैं और हु इज नॉट सिटीजन, फॉरेनर्स भी हो सकते हैं. कुछ क्लियर हो रही बात? तो ये केवल ओनली सिटीजन नहीं होगा, ये दोनों हो सकते हैं. मेरी बात समझ में आ रही है? आई समझ में? तो क्या इसका मतलब है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन केवल सिर्फ सिटीजन के लिए नहीं है, वो फॉरेनर्स को भी राइट्स प्रोवाइड करता है कि नहीं कर रहा? यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है ये, और वो लाइन में पूछती है, वो क्लियर हो रही, कॉन्सेप्ट पे फोकस करती है वो, कि फंडामेंटल राइट्स गेट्स टू द ओनली सिटीजन. आप क्या कहेंगे? नो, ये लाइन क्या है? गलत है. ओनली नहीं, गेट्स टू द सिटीजन तो चलेगा, ओनली अगर लग गया तो क्या है? वो गलत है. अब ये पर्सन को क्यों मिलता है? इस पर्सन को क्यों मिलता है? फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. फंडामेंटल राइट्स गेट्स टू द पर्सन फॉर कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट. कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट. ओवरऑल डेवलपमेंट का मतलब होता है फिजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए आपका, और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होना चाहिए. फिजिकल डेवलपमेंट कब होगा?
जब आपका सोशल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, होना चाहिए ना। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कब होगा? जब आपका मोरल एंड इथिकल डेवलपमेंट हो। क्लियर हो रही बात? एंड रिलीजियन डेवलपमेंट। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपको फंडामेंटल राइट्स मिलेगा, दोनों को मिलेगा। क्यों मिलेगा? फिजिकल डेवलपमेंट के लिए और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए। फिजिकल डेवलपमेंट में सोशल डेवलपमेंट, सोशल में अगर किसी को एडुकेशन नहीं दिया जाए, अगर किसी को एडुकेशन नहीं दिया जाए तो फिजिकल डेवलपमेंट हो पाएगा? किसी की हेल्थ इशू अगर ठीक ना करें, फिजिकल डेवलपमेंट होगा? नहीं ना होगा। अब जैसे कोरोना हो गया किसी को, बात विवाद क्या हो रही थी कि वैक्सीन फ्री मिलना चाहिए या पैसे से मिलना चाहिए, और फंडामेंटल राइट्स क्या कहता है?